the marks is 6. So if you are asked to write any 6 causes of poverty, so you must know at least 5 causes of poverty. ओके वैसे ज्यादातर 3 या 4 पूछता है, लेकिन 6 causes you must keep in your mind. Out of 7 to 8 causes of poverty, let's see the main reasons behind the poverty. The main reasons behind the poverty. The first reason was effect of British, and that cause has been explained yesterday. इस टॉपिक में पहले वाले पॉइंट में यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कैन बी यूज्ड टू राइट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अब मैं बुक में अभी मैं फिलहाल कहीं भी अंडरलाइन नहीं करा रही हूँ, जनरल डिस्कशन टाइप होगा. जनरल अभी मैं बात कर रही हूँ कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड पॉवर्टी. ओके. First, we have seen impact of British rule. You can take the content from the first chapter. I've told you already. Second, the major reason behind the poverty is population. Major reason behind the poverty is population. If number of people increases very fast, then increased number of people cannot be absorbed by the existing agriculture sector or existing industrial sector. जितनी भी जनसंख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो 2 तरह का प्रॉब्लम होता है. एक तो उनको सस्टेन कराना पड़ता है, वो हो नहीं पाता है, बहुत उनके कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन की कमी होती है, सप्लाई की कमी होती है, ड्यू टू विच प्राइस ऑफ कमोडिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर देम. ठीक है. नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज or opportunity in agriculture sector for employment is very less as compared to the number of people who is increasing in a very fast manner. तो आबादी आगे आगे जा रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत पीछे छूट जाता है हमारा. ठीक है बच्चों, तुम लोग इसको बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए ना क्योंकि मैं अभी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन भी करा रही हूँ, तुम्हें एक फॉर्मूला भी सिखा रही हूँ बनाना. ठीक है. और अभी बहुत सारा हम लोग एमसीक्यू भी खोजेंगे. ठीक है. चलो अब इसमें तुम लोग पहले इसको बिल्कुल अच्छे से सुन लो. 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा करना है. यस्टरडे या रिजल्ट ऑफ 12th came out and result of class 12th is very good of our school. So you also have to get more than 80 to 90 marks. So for that you have to put your effort. फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो. और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चे ऐसे बुक है, इसमें 2 चीज है. First of all, you should try to memorize the topic. You should try to memorize the topic और cram the topic, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है कि उसको रटना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो कॉन्सेप्चुअल study is very important. Otherwise, if twisted question will ask to you, you will not be able to write. ठीक है. So Indian economic development is not very tough, we know, but it is not too easy that you are thinking. So listen carefully. तो पहला है कि पॉवर्टी का रीजन था ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट है वो आज तक हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो लिख सकते हो आराम से. सेकेंड है पॉपुलेशन जिस कंट्री का जितना ज्यादा होगा उनको ना हम खाना दे सकते हैं और ना उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. ठीक है. क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और द फॉर्म्स. ठीक है. तो टर्शरी सेक्टर, industrial sector and agriculture sector, all these 3 sectors combinedly cannot generate the employment opportunity for the increased number of people. Clear? Third is inflation or mounting prices. Inflation का मतलब है rising prices on a constant basis, that is called inflation. Inflation का मतलब महंगाई. ठीक है. Rising prices on a constant manner, that is called inflation. तो महंगाई जो होती है बहुत फास्ट जब बढ़ता है तो उसको महंगाई कहते हैं. थोड़े प्राइस बढ़ता है तो ये कोई खतरे की बात नहीं होती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6%, 7%, 8% होता है, then it will be very dangerous for the
especially for the poor people. Okay, or for the people who are getting fixed income. People who are getting fixed income, listen carefully, people who are getting fixed income, or unemployed people, or poor people, these three types of people are hardly hit by the inflation. ठीक है, अब इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा, सोचो पॉवर्टी उतना ज्यादा होगा कि नहीं. महंगाई बढ़ रही है, 10 रुपए का सामान था, मैं खरीद रही थी, महंगा हो गया 15 रुपए होगा, अब मैं नहीं खरीदेंगी, मैं नहीं खरीद पाऊंगी उसको. तो जैसे, क्योंकि अब वो मेरे अब मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तो अब और प्राइस बढ़ेगा, और कुछ लोग मार्केट के बाहर हो जाएंगे, प्राइस और बढ़ेगा तो कुछ और लोग मार्केट के बाहर हो जाएंगे. तो ये चलता रहेगा, देखो ये चलता रहेगा इस तरह से करके. प्राइस बढ़ा, आउट, और प्राइस बढ़ा, some people will also have to leave the market, और प्राइस बढ़ा, some more people also have to leave the market, because now they cannot afford the increasing prices. If they are not in the position to afford the prices, it means now they have become poor, वो अब गरीब हो गए हैं. तो जितना इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, उतना गरीबी बढ़ता है. ठीक है, so inflation is also one of the reason behind poverty. समझ गए? लेकिन how to write in your answer sheet, for that I have sent the same content in WhatsApp. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, एक उसमें दिया हुआ है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स बाइंग और परचेजिंग न्यू एसेट, न्यू बिल्डिंग, new factory building, new land, okay, equipment or tools. So if you are buying new machinery, new capital, new tools, new equipment, this is called capital formation. And if you are buying new machinery, new factory building, you will be able to produce more commodity. That will increase the national income. That will increase the national income. तुम्हारे पास जितना मशीन होगा, नया मशीन होगा, जितना तुम्हारे पास रॉ मटेरियल होगा, जितना तुम्हारे पास इक्विपमेंट होगा, टूल्स होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, उतना तुम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे. ठीक है, एंड मोर प्रोडक्शन विल लीड टू मोर नेशनल इनकम, हाई नेशनल इनकम. ठीक है, लेकिन भैया ये नेशनल इनकम बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि मशीन मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, मशीन तुम नहीं खरीद पा रहे हो, मशीन वो नहीं खरीद पा रहा, वो नहीं खरीद पा रहा. क्यों? We all have very lesser income, we all have very less amount of money. तो कहाँ से खरीदेंगे भैया, कहाँ से खरीदेंगे? तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है. ठीक है, इनकम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Because we are poor, because we are poor. ठीक है, so because of poverty, capital formation cannot be made, capital formation is not possible. And if capital formation is not possible, then this capital formation will again start the poverty of the country. Okay, so it is a vicious circle of poverty. It is a vicious circle of poverty. ये दुष्चक्र है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि पॉवर्टी है, और कैपिटल फॉर्मेशन ही फिर पॉवर्टी को जनरेट करता है. ठीक है, लेस कैपिटल फॉर्मेशन, मोर पॉवर्टी, मोर पॉवर्टी मीन्स लेस कैपिटल फॉर्मेशन. So these two are interconnected. ठीक है, जिस दिन किसी कंट्री में या हमारे इकोनॉमी में ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, तो उस दिन पॉवर्टी खत्म हो जाएगा. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी इज स्टिल ऑन द राइजिंग ट्रेंड. ठीक है, वो हो गया. एक पॉइंट दिया हुआ होगा, तुम लोग देखना, मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं पहले बता दे रही, मैं बुक नहीं देख रही हूँ कि वो कैसे कैसे पॉइंट मैंने भेजा है तुम लोगों को, सारा तुम लोग को मिल जाएगा उसमें एक साथ. एक पॉइंट लिखा हुआ है सोशल फैक्टर, एक पॉइंट लिखा हुआ है सोशल फैक्टर. ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ, पीपल do not like to shift to some other place to get the employment, even though they have the opportunity to get it, but due to orthodoxy belief or due to the homesickness, some people do not like to leave their home forever and to migrate to some new place to get the employment opportunity.
पहले था ना कि गांधी जी को ना उनको अफ्रीका जाने को नहीं मिल रहा था क्योंकि उनको फैमिली को लग रहा था कि भाई वो वहां जाएंगे तो वो मांस खाएंगे, मीट खाएंगे, ठीक है, इसलिए उनको विदेश जाने को नहीं मिल रहा था। या पहले के लोग कहते थे ना कि समुद्र को पार करने से डेथ हो जाता है, ये सारा ऑर्थोडॉक्सी बिलीव है, सब ब्लाइंड फेथ ये जो है वो सारा चीज है। तो वैसा तो आज नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कारण से बहुत फील्ड में काम नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल फैक्टर। इलिटरेसी है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी खुद हो गया तो ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू ओल्ड बिलीफ, ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ, people do not want to migrate to new place because they think that they have to set themselves once again in the new atmosphere, so they do not want to leave their original or the native place, ठीक है। तो अब अभी भी गांव के बहुत से लोग शहर में आना चाहते हैं काम करने के लिए, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत कारण से अपने पर्सनल मतलब ऐसे बहुत से सोशल कारण से वो किसी किसी प्लेस पर काम नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल फैक्टर, corruption. Okay, this is the prime political factor, and it is a prime and a very heavy reason behind poverty. लाइक करप्शन के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की कि करप्शन से क्या होता है कि नौकरी किसी एक मेरिटोरियस को मिलना चाहिए लेकिन किसी और को मिलता है, ठीक है। ये करप्शन से भी पॉवर्टी खत्म नहीं होता। अरे ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी होता है, बुक में है, तुम लोग देखना, बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसमें इनडायरेक्ट है कि करप्शन होता है। तुम लोग खुद ही सुने होंगे कि भाई किसी अफसर को मिला है फ्लड में चना बांटने के लिए पूरे गांव वाले को, पूरे गांव वाले को चना बांटने के लिए मिला है, दाल बांटने के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आता है ऊपर से बांटने के लिए गरीब तक, कि वहां से आए गरीब तक पहुंचे, लेकिन बीच में हाईजैक हो जाता है, सारा जो प्रोडक्ट है वो हाईजैक हो जाता है, ठीक है। तो दे आर नॉट एबल टू बाय themselves, once again they will fall very below the poverty line because now they do not have the food, ठीक है, जो उनको मरसे पर भी मिल रहा है वो भी नहीं मिल सकता करप्शन के कारण, करप्शन के कारण। और राजीव गांधी कहते थे, मैं तुम लोग को बताऊं, राजीव गांधी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा था उन्होंने कि मैं 1 रुपया गरीब को भेजता हूँ, मैं गरीब को 1 रुपया भेजता हूँ, गरीब के पास केवल 10 पैसे जाते हैं, गरीब के पास केवल 10 पैसे जाते हैं। 90 पैसा कहाँ गया, 90 पैसा कहाँ गया, 90 पैसा गया कुछ करप्टेड लोग के पास, कुछ करप्टेड लोग के पास। So this example should be sufficient for you all to understand how the corruption is at very large scale in our country, बहुत तरह फैला हुआ है, बहुत लार्ज स्केल पे फैला हुआ है, ठीक है। Now I want to now these were some of the reason, population, impact of British rule, or lack of capital formation, social factor, political factors. Okay, so these were some of the causes behind the poverty. More than 5 to 6 points. If you want to add in your copy, you are free to add it. इसके अलावा भी पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो, बहुत सारा कारण, ठीक है। आप देखो, मैं तुम लोग को मैं दिखा रही हूँ कुछ एमसीक्यू के लिए, तो तुमको एमसीक्यू में क्या करना है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर है 71, पेज नंबर इज 71, पेज नंबर 71 में तुम लोग देखो, तो देखो, ये देखो मैं पढ़ रही हूँ, इसको तुम लोग ध्यान से देखो, पेज नंबर 71, ये 71 पेज नंबर यहाँ पर है, ये 70 और ये पेज नंबर 71 है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ पेज नंबर 71 है ये। चलो अब आ जाओ इसमें, देखो, डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर, डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर, कॉटन फार्मर, रिगार्डिंग कॉटन फार्मर, this content is given. First of all, come to the question. I have prepared one question for you all. देखो यहाँ पर, what factors led to, हाँ मैं जूम कर दे रही हूँ, what factors led to agrarian distress? agrarian means
related to agriculture farmer, तो agrarian distress means उनका sad situation, plight उनका, ठीक है, distress and suicides especially in the cotton belt of Andhra Pradesh and Maharashtra. AP means Andhra Pradesh and Maharashtra. I am repeating the question. If you want to note it down, please note it. Question is, this question is children not given in the exercises portion. So please write it. What मैंने कहा है ना कि ग्रे कलर बॉक्स का एग्जाम में आता है, इस बार भी आया था एग्जाम में, ये जो है ये एग्जाम में आएगा, तो मैं खुद तुम लोग को अपनी तरफ से कुछ एमसीक्यू बना के दे रही हूँ और कुछ टाइप में दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट फैक्टर्स लेड टू एग्रेरियन distress and suicides especially in the cotton belt of Andhra Pradesh, AP and Maharashtra. इन दोनों स्टेट में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण कि सुसाइड और एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो रहा है, गरीबी हो रही है और वहां के फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहले इधर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले बताओ तो, सब लोग सुन रहे हो ना? यस मैम। हाँ, बुक देख रहे हो तुम लोग स्क्रीन पर अपने? यस मैम। हाँ, और मैम अपनी एनसीईआरटी बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है तो इसको देखो, नोट करते जाओ आवाज। देखो, India has the largest area under cotton cultivation in the world covering 8,300 hectares in 2002-2003. Now one MCQ can be made here. जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एक MCQ तुम लोगों को तैयार कर लिया ताकि टाइम नहीं लगे क्लास में। देखो, India has the largest area under डैश, मैंने आंसर खुद लिख दिया कॉटन, ठीक है, यहाँ पे डैश मिलेगा एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? कॉटन। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया के पास सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन के को कल्टीवेट करने का एरिया किसके पास है? के पास है, ठीक है। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड कवरिंग 8,300 हेक्टेयर्स इन 2002-2003। अब तुम कहोगे मैम इसमें क्या खास बात है? अगर इसको तुम लोग छोड़ दिए होते और ये आ जाता है एमसीक्यू, तो यहाँ तुम क्या भरते? राइस होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, व्हीट होगा, क्या होगा? तो क्या होगा? मैंने फिंगर ऐसे हटाया तो क्या निकल गया? कॉटन। क्या भरोगे यहाँ पर? कॉटन, ठीक है। पूरी दुनिया में कॉटन की खेती करने के लिए सबसे बड़ा लैंड जो है एरिया, वो किसके पास है? इंडिया के पास है, ठीक है। देख ली सारे लोग? क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं बढ़ूंगी कैसे? अब आज एक MCQ हो गया, नोट किए कि नहीं तुम लोग इसको? नोट किए? देखो, फिल अप द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, डेफिनेशन और ट्रू फॉल्स, ये सारा आता है। और MCQ ये सारा आता है वन वर्ड के लिए, 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट एक और MCQ, the low yield of 300 kg per hectare, pushes it into third position in production. सोचो, हम लोग फर्स्ट से कहां पर आ गए? थर्ड में आ गए, ठीक है। लो यील्ड के कारण एरिया तो बड़ा है, but so sad that our farmer is not able to produce the large amount of cotton. लो यील्ड के कारण क्या हो गए? हम लोग थर्ड पर खिसक गए, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो आंसर तो दैट क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था ना एग्रेरियन वाला, उसका देखो आंसर लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के फार्मर्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आंसर देखो लिखा हुआ है, स्कॉलर्स साइट सेवरल फैक्टर्स दैट हैव लेड फार्मर्स टू कमिट सुसाइड। बहुत कारण से। पहला रीजन देखो, 1 2 3 4 5 6 रीजन दिया हुआ है, मैं 1 या 2 बता रही हूँ। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड ऑल दिस पैराग्राफ,
ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. फर्स्ट यहाँ पर टिक कर लो, पहले फर्स्ट टिक कर लो. द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग टू द फार्मिंग ऑफ हाई यील्डिंग कमर्शियल क्रॉप. ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द सुसाइड बाय द फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि द फार्मर्स ऑफ दीज टू स्टेट्स were compelled to shift from the traditional farming to the commercial farming. ये भी एक रीजन है भाई. क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है ना कि जितना देखो, जितना टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था, जितना टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था, और जितना इनको देखो यहाँ एडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था वो नहीं है. ठीक है, और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं है. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज गवर्नमेंट नहीं दे पाई. ठीक है, state government of these two states could not provide additional agricultural extension services. मतलब मान लो कि वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी नहीं दे पा रही होगी, ठीक है, स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं दे पा रही होगी, रिसर्च सेंटर नहीं होंगे एग्रीकल्चर फील्ड में. तो एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च होना बहुत जरूरी है, वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी बहुत जरूरी है. तो सच टाइप ऑफ agricultural extension services were not available, due to which even though farmer of these two states have adopted commercial farming, they had to commit suicide. लॉस होने लगा. कॉमर्शियल एग्रीकल्चर अपनाने के बाद भी इन सब रीजन से वो सुसाइड करने लगे. क्लियर कि नहीं? क्लियर सबको? क्लियर सबको? Yes, क्लियर? हाँ, अच्छा चलो ठीक है. अब इसमें मैं एक पॉइंट अभी और बता दे रही हूँ. देखो यहाँ पर क्या है, लो रेट्स. ये सेकंड पॉइंट क्या है? डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर द लास्ट 2 decades. डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. देखो, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर द adoption of LPG policy, government did not invest in the agricultural field. मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले वाले चैप्टर में भी था कि एलपीजी पॉलिसी ना ज्यादा ध्यान दिया था ये इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर पर. एग्रीकल्चर तो भैया बड़ा नेग्लेक्टेड फील करता था और करता है. तो ड्यू टू डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन द लास्ट 2 decades, फार्मर वेर कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड. वो भी एक रीजन है. थर्ड और लास्ट मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं. लास्ट तुम्हारा लास्ट लाइन तक है, यहाँ तक तुम पढ़ोगे. ठीक है, थर्ड है लो रेट्स ऑफ germination of seeds provided by large global firms. Spurious seeds. Spurious का मतलब है not actually valid. ठीक है, not actually valid मतलब spurious seed मतलब valid seed नहीं था, खराब सीड थे. जो सीड थे वो जर्मिनेट नहीं होते थे टाइम से. तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस फार्मर्स हैड टू रन इनटू लॉसेस. ठीक है, अच्छा, क्रॉप फेलियर हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया. तो ये सारा बच्चों देखो दिया हुआ है रीजन, सारा रीजन है. इन्हीं रीजंस के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के फार्मर ने सुसाइड किया. ठीक है, और एक रिपोर्ट ये भी है कि विद इन 1 year फ्रॉम 2002 टू 2003 आई थिंक 1000 फार्मर्स हैड कमिटेड सुसाइड इन आंध्र प्रदेश अलोन. सोच लो. ठीक है, बल्कि आंध्र प्रदेश में तो 3000 2005 दिसंबर तक 3000 फार्मर सुसाइड कर चुके थे. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर ये रहा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिखा दिया. ये 2 MCQ तुमको मिल गया. ठीक है, 2 MCQ का मतलब है यहाँ पर एक MCQ, द लो यील्ड ऑफ 300 kg per hectare pushes it into dash position in production. यहाँ पे क्या लिखोगे? लो यील्ड हुआ हमारे कॉटन कल्टीवेबल लैंड में, तो हमारा कंट्री कहाँ पर आ गया? थर्ड पर आ गया, थर्ड पोजीशन पर आ गया. ठीक है, ये इसका तुम लोग इसको देख लेना, समझ लेना. ये हो गया ये. अच्छा, अब नाउ नेक्स्ट हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम. नाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गवर्नमेंट्स approach is very important.
ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, राइट डाउन 3 डायमेंशनल अटैक, दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल अटैक, राइट डाउन अबाउट 3 डायमेंशनल अटैक ऑन व्हाट, ऑन पॉवर्टी, गरीबी पर गवर्नमेंट ने 3 तरफा अटैक किया, 3 साइड से अटैक किया, 3 साइड से, 3 देखो फिंगर देखो, 3 साइड से गवर्नमेंट ने अटैक किया, ठीक है, 3 साइड से। कैसे? पहला अटैक क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, पहला अटैक क्या हुआ, पहला अटैक था पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क करो, स्टार मार्क, स्टार मार्क, व्हाई स्टार मार्क, स्टार मार्क मींस दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो to solve the problem of poverty, government adopted the policy of 3-dimensional attack, 3 तरफा आक्रमण पॉवर्टी पर। पहला आक्रमण क्या हुआ, फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, अंडरलाइन करो, फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। इट इज बेस्ड, अब नाउ लिसन केयरफुली, पहले देखो, पहले ये मार्क करो, फिर मैं कैमरा भी ये कर दूंगी, हटा दूंगी। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ऐसे करके आ जाओ, ऐसे करके आ जाओ, ये ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पेज नंबर है तुम्हारा 73, एट पेज नंबर 73, सेकंड पॉइंट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू फटाफट, दिस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम थर्ड 5-year प्लान, मार्क करो इसको, थर्ड 5-year प्लान from 1961 to 66, 12 5-year प्लान है ना हमारे कंट्री में, मैं तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे मेरा। 5-year प्लान 51 में शुरू हुआ था, ठीक है, 51 to 55 फर्स्ट 5-year प्लान, इसके बाद फिर 56 से लेकर के 55 तक तो पहला प्लान, 55 के बाद 1961 तक दूसरा प्लान, 1961 से स्टार्ट हुआ थर्ड प्लान। तो फ्रॉम थर्ड प्लान दिस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उसमें क्या क्या था, तुम्हारा मनरेगा, ठीक है, संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, public distribution system, food for work. So all these are called the poverty elevation program. For that we will see here. यहाँ पर पढ़ोगे, बहुत सारा नाम दिया, देखो SRY नाम दिया हुआ है, यहाँ देखो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना दिया हुआ है, REGP दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार दिया हुआ है, all these are called the poverty elevation program, and this program was started from the third 5-year plan. अगर एमसीक्यू में आ जाएगा, लिखा रहेगा फर्स्ट 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, सेवंथ 5-year प्लान, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, किसमें टिक करोगे, किसमें टिक करोगे? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम डैश, फर्स्ट 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, seventh 5-year plan. Which one is correct? Ma'am, third 5-year plan. Third 5-year plan. हाँ, from third 5-year plan our government started poverty elevation program. ठीक है, ये second हो गया, ठीक है। अब third जो तुम्हारा point है 3-dimensional attack, 3-dimensional, तो पेज पर तो 3-dimensional attack में पहला तो मार्क कर लिए वो वाला ग्रोथ वाला, सेकंड वो, और थर्ड देखो ये थर्ड पेज नंबर 74, turn the page, come to the page number 74, the third approach. The third approach to addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people. Mark this 3 line. The third approach to addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people. Written? Mark कर लिए? Mark किए? Now, listen carefully. Now, 3-dimensional attack. From 3 different direction, government has attacked on the poverty problem. 3 तरफा 3 पॉलिसी। सबसे पहला पॉलिसी था ग्रोथ, पहला था ग्रोथ, ग्रोथ से गवर्नमेंट गरीबी को हटाना चाहती है। दूसरा
भाई ग्रोथ से नहीं होगा या चलो होगा, तो एक सेकंड हेल्प भी गवर्नमेंट ने लिया, एक सेकंड स्टेपनी भी था, दैट इज द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ग्रोथ पहला, दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तीसरा आ गया ये जो मैंने मार्क ये करवाया है, प्रोवाइड बेसिक मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ, प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, बेसिक मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द लाइफ, तो आउट ऑफ दीज थ्री द फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ में गवर्नमेंट ने ट्राई किया लोगों के इनकम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन द ग्रोथ अप्रोच गवर्नमेंट वांट्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल सो दैट द इनकम will trickle down to the poor. Income will trickle down to the poor. कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगा, जितने डैम्स बनेंगे, पुल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा और पैसा धीरे धीरे ऊपर से आकर के पुअर तक ट्रिकल डाउन हो जाएगा, फ्लो में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ अप्रोच मीन्स गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन दैट वे several overbridges, railway tracks, work of laying of roads, ये सारा जब काम होगा, जब ये सारा काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड पुअर पीपल विल आल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ के हेल्प से डायरेक्टली पुअर पीपल विल नॉट गेट मनी, poor people will not directly get the money, but from the process of investment in the infrastructure, government will be able to give employment to the poor people. ठीक है, तो गवर्नमेंट एक बार 20 करोड़ लगाएगी, 20,000 करोड़ लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो धीरे धीरे पूरे कंट्री का ग्रोथ होगा, पूरे कंट्री का ग्रोथ होगा, और जब पूरे कंट्री का ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पुअर पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ये पहला अप्रोच था, पहला अटैक था। ठीक है, सेकंड इज poverty elevation program, that is very lengthy topic. In poverty elevation program, if government is not able to give employment directly to the poor, then government has started several policies, that is wage employment and the self employment. मतलब लोगों को कहती है, लोगों को पैसा देती है, तुम उसे काम करो, पैसा मिलेगा, रिटर्न करो, जो वो गवर्नमेंट का सेवरल पॉलिसीज है। तो इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से, उसमें मनरेगा भी आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो दैट ऑल पॉलिसीज आर कॉल्ड द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, दिस सेकंड अप्रोच व्हिच हैज स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड 5-year प्लान, यू हैव टू क्लेम इट बिकॉज सेवरल MCQs कैन बी मेड। SGSRY कब बना, क्यों बना, PMRY कब बना, क्यों बना, PMGY कब बना, क्यों बना, फुल फॉर्म, SGSRY क्या है, फुल फॉर्म, NFWP क्या है, ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क है, नेशनल फूड फॉर वर्क। तो ये कब बना, क्यों बना, ठीक है, इसका डेट, इसका फंक्शन, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, उसके लिए मैं कंटेंट भेज दूंगी, तुम लोग उसको पढ़ना। Third is the third approach was that to provide minimum basic amenities, to provide minimum basic amenities. इसमें PDS था बच्चों, थर्ड वाले में public distribution system, because in third approach government provides basic thing to the people. थर्ड अप्रोच, पहला अप्रोच था ग्रोथ करने का, देश का ग्रोथ होगा, धीरे धीरे पुअर को भी उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, पहला, उससे नहीं होगा, नहीं फायदा मिल रहा है। सेकंड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत उनको मनरेगा में काम दे दो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उनका काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, भाई अगर कुछ नहीं हो, जॉब नहीं हो, तो उनको सरवाइव करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको घर देने के लिए गवर्नमेंट जो है बेसिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ यू आर नॉट एबल टू बाय, you are very poor. If you are not able to buy, then you can get the wheat, rice, pulses, sugar, kerosene oil or the LPG at a very subsidized or concessional rate under the public distribution system. ठीक है, या घर बना करके दिया जाएगा, पहले खाना तुमको दे दिया गया, चावल दाल गेहूं दे दिया गया, PDS के तहत तुम लोगों ने पढ़ा है, तुमको खाना खिला दिया गया, जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं, ग्रोथ में जॉब नहीं मिला, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में तुमको जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं,
तुमको खाना मिल जाएगा। लास्ट है ना, लास्ट अप्रोच है, खाना मिल जाएगा कैसे, पीडीएस से, ठीक है। फिर अगर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट ने शुरू किया आरोग्य सेतु, तुम लोगों ने देखा है। फिर आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आरोग्य सेतु, मतलब ये तो खैर गवर्नमेंट, ये सारा तुम्हारा आएगा बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग नाम देखोगे बच्चों, पेज नंबर 74, एट पेज नंबर 74 सेवरल नेम्स आर गिवन। जैसे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री, फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास यानी घर, छोटे छोटे कम दाम के घर बना करके भी लोगों को दिए जाते हैं। क्लियर? सो these are called the three-dimensional attack. Three-dimensional attack. You can see the question. हाँ, question number 5 of exercises portion. Question number 5. The three-dimensional attack on poverty adopted by the government has not succeeded in poverty alleviation in India. Comment. ठीक है? ये तो है कि why three-dimensional attack is not successful. क्रिटिकल अप्रेजल करना है, उसके आलोचना करनी है, वो तो खैर दूसरी बात हो गई। बट यू कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द थ्री डायमेंशनल अटैक फॉर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 6 मार्क्स। तो क्या करोगे? थ्री डायमेंशनल अटैक मीन्स फर्स्ट अप्रोच इज ग्रोथ, सेकंड अप्रोच इज, सेकंड क्या है? poverty alleviation program. Third is provide basic amenities of